Hello, guys. Welcome, everyone. I'm Mukul from CSAT Mavericks, a Telegram community for guidance regarding CSAT paper of UPSC. A very unique initiative started by um, myself and my friend Webhav to guide other aspirants, our fellow aspirants in the community regarding the CSAT paper, a very integral paper in the whole examination of UPSC, an exam which some people take very lightly and which is totally not meant to be. So yes, we have launched a very good initiative, CSAT Mavericks, to help others around the scare of CSAT. So before moving forward, a bit of introduction about myself and Vibhav. Vibhav has graduated from IIT Delhi in electrical engineering in the batch of 2021, and also myself. I graduated from BITS Pilani campus in mechanical engineering in the batch of 2021. I have written mains in 2022 as well as in 2024. I could not give the exam in 2023. On the other hand, Vaibhav has aced prelims in both 2022, 2023, as well as 2024. And yes, there's very good news for Vaibhav. He would be appearing for the personality tests, which are going to be held, just in a couple of weeks from now. So let's wish him all the best for his personality test, his interview. Let's hope that he gets into his desired service, the IAS, this year. Let's move ahead. That why us? This question must be popping right into your mind. Why us? कि हम ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं when there are a lot of expert teachers already out there who are giving a lot of expert guidance. So what could possibly we offer? See, just as I told a bit earlier, that we have cleared this exam every single time that we have appeared, and with very good margins of at least 15 to 20 marks above the cutoff. And CSAT, we were every single time we were scoring between 110 to 120. So I think, and just when the cutoff is just 66.6 marks. So I think this gives us a sense of credibility that we are good enough to guide our other fellow friends, our other aspirants in this community, at least regarding the CSAT paper. I agree that I might not be the expert in political science, or I might not be the expert in economics. There would be a lot of other people who would be knowing a lot more than us in, let's say, history. But for CSAT, where the cutoff is 66.6 marks, it's not a competitive paper. You just have to cross a cutoff, and we have done it a lot of times, like actually every time. And you see, almost we are getting twice the marks that are needed for the cutoff. So yes, I think that does adds a sense of credibility to us, both of us. And also there are some personal reasons. We have seen we have seen a lot of our friends who are very good in GS paper, कि 100 plus आ रहे हैं GS paper में, but unfortunately CSAT paper they used to falter around 60, 65, 55, and they had to put the whole year again. I'm talking about some of our very meritorious friends, very intelligent friends. So that was also an emotional moment for both of us, and that's how we started. That's how we thought of helping other aspirants around. हमें लगा कि यार अगर जो हमारे दोस्त हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो there would be a lot of other people who are going through the same issue. So yes, that's why we started this initiative. तो यार let's get the basics first. ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज़ को जब तक समझते नहीं ना, तब तक हम उसमें फंसे रहते हैं. हम अभी तक क्या समझते हैं कि यार CSAT तो बहुत टफ है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर टेक्सटिंग मी, सर आई हैव फोबिया ऑफ फॉन्ट, आई हैव नो, आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीडिंग पैसेजेस. मैं आई स्टार्ट फॉर गेटिंग पैसेज, स्टार्ट से पढ़ता हूँ एंड तक आते आते स्टार्टिंग का भूल जाता हूँ, बहुत टफ है. तो लेट मी फर्स्ट बस्ट ऑल द मिथ्स. देखो यार, जस्ट एज इरफान सर इज सेइंग, जब उन्हें कोई कह रहा है कि CSAT इज टफ, वो कह रहे हैं नहीं भाई, CSAT इज नॉट टफ. CSAT is a piece of cake, but there is a trick, and the trick is to go from CSAT is tough to CSAT is a piece of cake. You need a mix of right strategy and smart work. Strategy and smart work, believe me, those are the keywords. That's how we have aced this exam every year. It's not because कि यार हमारा मैथ्स में बैकग्राउंड था, वो IIT से, मैं बिट से हूँ, इसलिए हमारे लिए तो मैथ्स बहुत आसान थी. नो, ऐसा नहीं होता यार. एग्जाम के अंदर एक चीज़ का और फर्क पड़ता है कि आप कितना स्ट्रैटेजिकली खेल रहे हो. ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है, ऐसा नहीं कि हर बॉल पे सिक्स मारना है. यू हैव टू बी कैलकुलेटिव, स्मार्ट खेलना है. ठीक है, वही एग्जैक्टली वही चीज़ है अगर आपको CSAT को नेल करना है. तो आई जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ हैज़ द पैटर्न ऑफ CSAT बीन इन 2023, 2022 एंड 2024. जस्ट गिव यू एन आइडिया कि भाई हमें अलग से CSAT को क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा. डिस्पाइट CSAT बीइंग जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर यार, फिर भी हमारे को उसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा. I'll give you a small background. In 2021 तक CSAT used to actually be a piece of cake. बहुत बहुत कम परसेंटेज ऑफ
लोग थे जो GS के अंदर क्लियर हो रहे होते थे, बट दे यूज टू फेल इन CSAT. ऐसा बहुत कम, लाइक less than 5, less than 10% I would say. But in the recent times that number has gone up, and I'll tell you how that happened. 2022 में क्या हुआ यार कि ना अराउंड 15-20% डिफिकल्टी इंक्रीज करी, ठीक है. And even then यार there were lot of my friends, even there were a couple of my friends who were already into the services. They had gotten into the services in 2021, you see, but they failed in 2022 prelims just because of the CSAT. क्यों? सिर्फ 10% डिफिकल्टी इंक्रीज करी थी यार 2022 में. दैट वॉज सफिशिएंट टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल देयर होल ईयर. फिर यार 2023 में तो हमें पता ही है क्या हुआ. ऑनेस्टली the whole of the CSAT exam seemed like an IIT exam. Okay, I remember my preparations during the IIT exam, Webber also, and we discussed यार ऐसा लग रहा था कि IIT के अंदर जो कोचिंग लेते थे हम उसका कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट था. But still, we were able to clear just because of those two words that I mentioned, smart work and strategy. चलो ठीक है यार 2023 को हम एक बार को मान भी लेते हैं कि एक बाउंसर ईयर था. ये एक ठीक है वन ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी, शायद ऐसी दोबारा नहीं होगी. बट कम 2024 फिर से वही हुआ यार. 2023 में what UPSC played with was quant को उन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वर वेरी इजी. सो 2024 में सभी एस्पिरेंट्स इसी माइंड मेकअप के साथ गए कि यार क्वांट को हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, but we'll try to do our best in reading comprehensions. But what UPSC did was, UPSC again tricked the aspirants. इस बार UPSC ने quant को easy कर दिया and reading comprehensions को थोड़ा confusing कर दिया. They were not actually confusing, but when you are in the exam, when you have the pressure, and guys, believe me, especially amid the heat wave, I remember I was sweating like anything. Okay, there was so much heat, and UPSC just tricked everyone. Quant को easy कर दिया, reading comprehension को difficult कर दिया. Those who are depending upon reading comprehensions, यार उनके लिए फिर से प्रॉब्लम हो गई. तो मतलब हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया कि वोलेटिलिटी तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न से पेपर आ रहा है जैसे पहले होता था. बिलीव मी यार गाइस, 2013 से लेकर आप 2021 का पेपर देखना, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है. इन ऑल थ्रू आउट दीज 8 years यूपीएससी ने कोई CSAT में पैटर्न चेंज नहीं किया, बट फ्रॉम द लास्ट 3 years अ लॉट हैज़ चेंज्ड, विच मेक्स अस वंडर कि यार अब CSAT को बिना देखे तो नहीं जा सकते. CSAT को ऐसा तो नहीं कर सकते यार चलो भगवान भरोसे है, अब जैसा UPSC ने कर दिया वैसा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते यार. अब अगर आपको लगता है कि 1 year डजंट रियली मैटर फॉर यू, फिर अलग बात है, बट 1 year इज अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम. तो क्लियरली यार मास्टरिंग CSAT इज एसेंशियल टू अवॉइड लूजिंग अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क. ओके, गुड. आई होप एवरीवन इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, द एनालिसिस आई प्रोवाइडेड, द नेचर ऑफ द एग्जाम एंड द वोलेटिलिटी. तो and yeah, please, I would be very, very honest. This is one situation you would never want yourself in. You remember यार 2023 के बाद कितने प्रोटेस्ट हुए थे, just because of the CSAT paper. People were demanding re-exam, या फिर 33% को हम वो कर देंगे स्टैंडर्ड पासिंग मार्क्स या वट एवर, मतलब. बट कि क्या हुआ, UPSC would never bend the knee. UPSC says कि यार ये जो मैंने किया है that is the final call. इसके आगे कुछ नहीं होगा. तो अब देखो दो चीज़ें हैं यार, या तो आप इस बार अच्छे से CSAT को कवर कर सकते हो कि यू रिमूव एनी स्कोप फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि यार CSAT में जो भी UPSC ने अपनी ट्रिक करनी है इस बार कर लो, मैं प्रिपेयर्ड हूँ. या तो ये अप्रोच है, या फिर दूसरा यार ये है कि लेट्स हिट एंड ट्रायल मोड पे चलते हैं. अगर पेपर ईजी आया तो कर लेंगे, अगर UPSC ने कुछ भी ट्रिक करी तो वी वुड डिमांड फॉर एग्जाम. एंड गाइस, इन माई ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन, दैट वुड जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. This is a poll we floated a couple of days ago on our channel. It is still live. A lot of people are still answering. But at the time when I'm making this video and I'm asking the confidence level in CSAT, there are a lot of you who are saying that they are unable to solve maths and quant. Okay. Which is totally understandable. Maths and quant is that one area where everyone is so scared. Okay, they just have a phobia of maths. And I completely get it यार, it is natural. A lot of you are from humanities background. आपने 10th के बाद मैथ्स पढ़ी नहीं, so it becomes very natural for you to have a maths phobia. But that's not what we are here discussing. आज हम वो बात नहीं करेंगे कि यार अच्छा आपको फोबिया है तो क्या करें क्या नहीं करें. आज हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यार, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. ठीक है, एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स आपको ऑफिसर बनने के बाद भी क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो आज हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे. And that solution is basically our, the biggest deliverable of our initiative at CSAT Mavericks. देखो यार, let's first understand the very pattern of this exam.
ठीक है, 1/3 ऑफ योर पेपर कंसिस्ट्स ऑफ क्वांट, 1/3 ऑफ द पेपर consists of logical reasoning, and 1/3 of the paper consists of reading comprehensions. जिसको क्वांट से डर लग रहा है यार, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत नेचुरल है, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बायोलॉजी से बहुत डर लगता था, मुझसे कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं जाती थी। सिमिलरली अगर आपको क्वांट से डर लग रहा है, बहुत नेचुरल है यार, हम सभी को किसी ना किसी चीज़ में इशू होता है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्वांट इज नॉट द एंड ऑफ दिस पेपर यार। इस पेपर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू सी, क्वांट इज जस्ट 1/3 सेक्शन, अनदर बिग पार्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड क्वांट में भी पता है क्या यार, क्वांट में देयर आर सम टॉपिक्स लाइक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, विच आर कंसिडरेबली टफ, ओके, they are very tough even if you have a good background in maths. But on the other hand, there are some topics like averages, ठीक है, like basic number system, जिसके अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरी ईयर, वही 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। अगर आप उन 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चन को कर लो, सो योर एवरेजेस, नंबर सिस्टम, बेसिक परसेंटेजेस, दीज आर दोज वेरी टॉपिक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं यार। एवरेज तो हम पता नहीं कितनी बार दिन के अंदर खुद कैलकुलेट करते होंगे किसी भी चीज़ के लिए, या परसेंटेजेस कि आज इतना % बेनिफिट हुआ, या मतलब वट एवर, या फिर इस जगह से परचेज करना या फिर उस जगह से परचेज करना, इन दोनों में इतना % का मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो हम रोज़ करते हैं यार। तो क्या ही प्रॉब्लम होगी अगर परसेंटेजेस को एक क्वेश्चन के रूप में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे आपको सॉल्व करने, क्या ही बड़ी बात होगी यार। आई एग्री, देयर आर सम टॉपिक्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दे आर वेरी टफ। इसके लिए हमें बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, इसमें टाइम भी लग जाता है, गलती होने का भी स्कोप है। बट व्हेन वी कम टू वेरी इजी टॉपिक्स लाइक एवरेजेस, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, इट मेक्स नो सेंस टू स्किप देम, ठीक है। आप अपना सीसा पेपर खोलना जब भी आप एग्जाम देंगे, आपको कुछ नहीं करना है यार, उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस के अंदर आपको 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। बिलीव यार, नो वन वुड गिव यू अ मेडल कि अगर आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रहे हो, जब आपको सिर्फ 66.6 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करना है। एंड विद आवर स्ट्रैटेजी, जो हम आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, यू वुड एबल, वेरी इजीली यू वुड बी एबल टू गो टू 90 और 100 आउट ऑफ 200। आपको क्या करना है ना यार, आप पेपर आपने सॉल्व करना शुरू किया, आपको सबसे पहला क्वेश्चन लेट्स से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दिखता है, आपने उसको देखना ही नहीं है, आप उसे छोड़ दो, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन और कोई बहुत टफ दिखता है, आपने उसे देखना ही नहीं है, आपने पेपर स्कैन करना है, आपने देखना एवरेजेस का क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। आपने देखा एवरेजेस का क्वेश्चन, सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है। आपने देखा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर फैमिली ब्लड रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेट्स से अ पर्सन XYZ इज पर्सन X स्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा राइट थोड़ा स्ट्रेट मूव करते हैं, फिर थोड़ा सा वो लेफ्ट चले जाते हैं, फिर उसके बाद 50 मीटर्स लेट्स से वो वापस इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो नाउ व्हाट इज हिज डायरेक्शन कंपेयर टू द इनिशियल डायरेक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये तो हम रोज़ करते हैं। हम अपने फ्रेंड को बता रहे होते हैं यार, उधर नहीं खड़ा हूँ मैं मार्केट में, भाई तू जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा आगे आ। फिर डिलीवरी बॉय जो हमारा कभी रात को खाना लेके आते हैं कि भैया वहाँ पे नहीं, आप उधर ATM पे खड़े हो, आप उससे आगे आइए, आप फिर राइट में जाइए। तो हम डेली कर रहे हैं यार, इसमें तो हमें कुछ डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारे को गेम खेलना है ना, वो है माइंड गेम, कि उसने हमारे को UPSC के पेपर में उसने मुश्किल क्वेश्चन दिया यार, हमारे को वो उठाना ही नहीं है, ठीक है। हमारे को सबसे पहले ईजी क्वेश्चन पे जाना है, हमारे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों को क्वांट में इशू है, उन्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को यार मैं स्ट्रेंथ बनाना है। आप आराम से 1 घंटा लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करिए, आपके 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। If you would be regular in the practice with us, those who are regular in the practice with us are able to get 20 questions correct. That is, how much marks? So good marks यार। इतने से यार आपको 50 मार्क्स हो गए। एंड अभी आपके पास होल 1 आवर इज लेफ्ट। 1 आवर में आपको कितना 16 मार्क्स चाहिए यार, 17, चलो 17 लगा लो। व्हाट इज द बिग डील? 1 घंटे में हम 17 मार्क्स तो ले ही सकते हैं यार। एवरेजेस, परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, इनसे हर साल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटिंग, ओके। हमारे को सिर्फ ट्रिक अंडरस्टैंड करनी है, इजी क्वेश्चंस हमारे को पिक करने हैं, टफ क्वेश्चंस को हमारे को स्किप करना है। क्योंकि वाई, आप अगर 180 मार्क्स आउट ऑफ 200 लेके आते हैं, आप लेट्स से फॉर दैट मैटर 200 आउट ऑफ 200 भी लेके आते हैं, या 140 आउट ऑफ 200 भी लेके आते हैं यार, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। कोई उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन CSAT के मार्क्स, GS के मार्क्स दोनों जुड़कर प्रीलिम्स की मेरिट बनती थी, बट नाउ दैट इज नॉट द केस एनी मोर। यू जस्ट हैव टू क्रॉस द कट ऑफ 66 आउट ऑफ 200। अब वो आपकी 70 पे हो, आपकी 80 पे हो, डजेंट रियली मैटर। एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट विद अस, बिलीव मी यार, यू आर नॉट गोइंग टू बी बिलो 90, यू आर गोइंग एटलीस्ट 90+। कि कोई चांस ही नहीं रहा यार कि 2-3 क्वेश्चन अगर कॉन्ट्रोवर्शियल भी आ गए, तब भी अपन तो सिक्योर हैं भाई, अब मेंस के लिए पढ़ेंगे। आई जस्ट शो यू, दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन यार, कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स required in a cube, required to cut a cube into 64 identical pieces.
मतलब ठीक है, इसमें ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वेरी रिपीटेटिव। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं। अगर आपको लग रहा है आपको कॉन्ट के अंदर इशू है, आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, भूल जाते हो, कोई बात नहीं यार, इसमें तो फॉर्मूला चाहिए ही नहीं यार। एक क्यूब को लेकर सोचना, ठीक है, एक आपको क्यूब दिया गया है, अब आप उसे कैसे करोगे, मतलब थोड़ा सा आप, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दिस, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, एक बार आप खुद सोचो यार, ये क्यूब है, किस तरीके से इसे कट करूँ यार। बहुत सिमेट्रिकली कट करना पड़ेगा, कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल नॉर्मल विजुअलाइज करो, ठीक है, मैं 2 मिनट में कर दूंगा, बट स्टिल मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट आप एक बार इसे खुद ट्राई करें, क्योंकि दिस इज टोटली डूएबल यार, कुछ इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। मतलब अगेन यार देखो, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कुछ भी बड़ी बात नहीं है यार। आप नंबर मान लीजिए, कुछ भी नंबर, 100 आप मान लीजिए, ठीक है, इसको आपने गलती से 4 से डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, जबकि आपको सॉरी 25, जबकि आपको उसको 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करना था, विच शुड हैव बीन 400। तो बस यू हैव टू फाइंड आउट कि 400 और 25 के अंदर कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। मतलब दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अरिथमेटिक जो हम डेली करते हैं, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यार। इतना तो हम हमेशा अपनी लाइफ में करते हैं कि उसने मैंने उस अपने फ्रेंड को पैसे दिए थे, उसने मुझे लेट्स से मैंने उसे 100 रुपये दिए थे, उसको मुझे 120 रुपीज़ वापस करने थे, लेकिन यार उसने सिर्फ 80 रुपीज़ ही वापस करे, तो कितना परसेंटेज अभी मैं लॉस में हूँ, या मतलब समथिंग लाइक दैट। यू डू दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस यार। ये तो अब देखो, मतलब बेसिक कन्वर्जन है, आप कहीं भी से भी पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग ले रहे हो, या आपके पास कोई PYQs की बुक है, समथिंग लाइक दैट, तो बेसिक फॉर्मूला यार, मतलब रट्टा मारना है, यू जस्ट हैव टू क्रैम इट। एंड कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, हर जगह मिलेंगे आपको ये फॉर्मूलाज। तो यार अगेन यार, ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में प्लीज़ टेल मी, आप मेरे को ना कहीं से, इंटरनेट से, किसी बुक से, कहीं से भी कोई फॉर्मूला ला के बता दो यार, कि यार वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। आप नहीं ला के दे पाओगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हेन यूपीएससी आस्क्स यू टू कैरी कॉमन सेंस इन द एग्जाम हॉल, कि यार कुछ भी मत लेके आओ, पानी की बॉटल, पेन, कॉपी, कुछ मत लेके आओ, बस कॉमन सेंस ले आना। मैंने इस क्वेश्चन को पता कैसे किया था, आई एक्चुअली टर्न माई रिस्ट वॉच। यू सी, यूपीएससी अलाउज यू टू हैव टू कैरी योर रिस्ट वॉच, तो सिंपल यार, कुछ करना ही नहीं। अगेन यार, ये तो मैं अभी आपको वही बता रहा था, हम डायरेक्शंस तो हमेशा किसी ना किसी को दे रहे होते हैं, कि मेरे घर को आपको आना है तो बस स्टैंड से राइट लेना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है, फिर वो वाली गली पकड़नी है, या मतलब एनीथिंग, और आप मेरे घर आ जाओगे। रोज़ करते हैं यार हम, इसमें डरने वाली बात क्या होगी। एंड दिस इज लिटरली आस्क्ड एवरी ईयर, कोई स्कोप ही नहीं है यार आपको गलत करने का, मतलब आप समझ रहे हो। तो देखा, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड जस्ट लाइक दिस, सी हाउ, कितना देखा अभी हमने, 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, हमने 5 क्वेश्चन देखे। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन वर फ्रॉम 2024 एंड मतलब कितने मार्क्स, सिर्फ इतने से हमने देखा कि कोई फॉर्मूला ही नहीं चाहिए, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो हमें अंडरस्टैंड करने की सीसा टफ नहीं है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रैटेजिक, एंड कोई उसके बाद इशू नहीं है। तो गाइज, जॉइन आवर चैनल, रिमेन कंसिस्टेंट विद अस, बिकॉज बिलीव मी यार, कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट विल टेक यू एनीवेयर। जस्ट ऑन द बिहेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जॉइन आवर ग्रुप, वी सॉल्व क्वेश्चंस डेली ऑन द ग्रुप, वी हैव वीकली सेशंस, and we are here to support you, guide you, mentor you in all or any aspect of your preparation. So yes, join our Telegram channel, be a part of our vibrant community, and let's once and for all solve this problem of the scare of CSAT. Thank you very much, guys.